Okay. So think of you haven't done experiments in lab, right? You are COVID students of school. So 11th class you haven't gone, right, to school. So you don't know what a pipette is. Do you know what a pipette is? Okay. Um, okay, fine. Think of something like this. Mm, Suppose you are going to market to buy a bucket, okay? To buy a bucket of water, okay? Not with the water, without water, of course, just a bucket, okay? And you, I am a shopkeeper, I show you two buckets, okay? There are two, you have two options, okay? So the options are a bucket which is like this, okay? And there is another bucket which is shaped like this. Which will you take, A or B? Priya Datta, keep your video on. So your voice is also very You're audible, muffled. very less audible also. What has happened? So I don't know. Even your voice is just really soft. Anyone else can hear what she's saying? It's very low. 1 minute. Yeah, increase Is your it mic in audible? volume. No, it's not Is it fine better? yet. No, no, no. Uh, It has to be a lot better, like 3 times more. okay. Is it better now? Yeah. Okay. Varun. Varun. Yes, sir. Which bucket will you buy, A or B? So if we want more quantity than B, Yeah. I forgot. The whole point of having a bucket was to have more quantity of water. so I don't know whether you want to. Right? Oh yeah, that's why I'm telling you. Okay. I need more water. So B, right? I mean the bucket इसीलिए होती है capacity. तो इसमें हम ना ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं the capacity of better bucket B is more. Capacity मतलब क्या होता है? Capacity का मतलब होता है the word meaning of the is the ability to hold water. यही होता है ना, ability to hold water. Capacity does not tell you how much actually volume of water it is containing right now. Basically, for example, even though capacity of bucket B is more than that of A, but if you fill the buckets like this, then you know the volume of water contained in A might be more than volume of water contained in bucket B. Okay. Capacity is the capacity geometrical property होती है bucket की. Geometrical मतलब वो कैसा बना है, shape, geometry. वो उसकी property नहीं होती है कि पानी कितना डाला है, कितना पानी डाल सकते हैं, ये कैपेसिटी होती है. समझ में आया ना एवरीवन? समझ में आया? ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हमने वी आर स्टोरिंग वाटर, तो इसलिए हम वाटर कैपेसिटी की है बात. ठीक है. अब देखना इस जो चैप्टर है ना, इसमें क्या है, इसमें देखो तो दो चीज देखो. एक तो है सपोज यू थिंक ऑफ अ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ठीक है. सो इस चैप्टर में जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटी या कैपेसिटर, तो वील टॉक ऑफ एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड. लिखते रहना. ठीक है. एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. Okay. Now there is one very simple question I want to ask Varun. Varun, why do you say the capacity of bucket B is more than that of capacity of bucket A? It has more space, like more volume. Oh, can you? Okay, this it has more volume is a very it's a very mathematical term, right? Good. It's a mathematical term. It has more volume. Okay. You can also we can also talk in terms of this, that for the same, see, you have to understand capacity like this. Okay, you should understand the capacity now like this. For the same amount of, for same amount of water level, for the same amount of water level, for the same amount, sorry, amount नहीं, the level of water level, for the same level, अगर level same है तो B में ज्यादा पानी है ना A से. ठीक है. तो either you can say the capacity of A is more than capacity of B by that logic. क्या कि capacity if the level is same, the level is same
then the capacity depends on amount. Which has more amount will be having more capacity, right? ठीक है. Alternatively, you can also talk like this कि I am putting equal amounts of water. I am putting equal amounts of water. ठीक है. और अगर मैंने इसमें बी में इतना पानी डाला तो यहाँ तक भरता है वो, तो ए में उतना ही पानी डालूंगा तो वो ऊपर तक भर जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? If the amount is same, if the amount is same, if the amount is same, which has higher level, the level is inversely proportional to capacity. यहाँ पे amount is directly proportional to capacity. समझ में आ रहा है ये बात कि अगर लेवल सेम है तो जितना अमाउंट को स्टोर कर सकता है उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटी. फाइन. और अगर अमाउंट सेम है तो लेवल जितना ज्यादा है उतनी उसकी कैपेसिटी कम है. बात समझ में? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? तो कैपेसिटी इन शॉर्ट तुम्हारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारी होनी चाहिए अमाउंट के ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी अमाउंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए लेवल के. ये बात समझ में आ गई? इन दोनों से यही निकल के आया ना, इन दोनों से ये निकल के, इससे ये निकल गया, इससे ये निकल गया कि कैपेसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट डिवाइड बाय लेवल. ठीक है. अगर लेवल किसी की चीज का ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है. ठीक है. और उसका लेवल कम बढ़ता है, कम है उसका लेवल, तो उसकी कैपेसिटी कम है. सेम थिंग फॉर अमाउंट. अगर अमाउंट ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा है, अगर अमाउंट कम है तो कैपेसिटी कम है. डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? ठीक है. Who is not in today's class? Anushri is not here. Who is Arushi? No, Arushi is in. Ashwini. No, she is there. Bhavna. Chitesh, Meghna is not here. Priya, Sarika. Sarika is also not here. Sarika is. Amatra. Siri. Siri is here. Siri is also not here. No? Oh. So capacity. Okay. So now in your देखो in electrostatics the level is actually voltage. It is voltage. Okay. लेवल है वोल्टेज की, वोल्टेज कितना बढ़ता है. फाइन. तो द कैपेसिटर का फॉर्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q by V और अमाउंट है चार्ज. ठीक है. हम इस चैप्टर में द चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है. तो चार्ज इज लाइक amount, how much charge can you store, divide by how much volume, what is the potential you have raised. Okay. ठीक है. Alternatively ये भी हो सकता है कि कैपेसिटर इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. क्योंकि जहां पे चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना जो हमने बनाया है. ओके. सबको यहाँ तक समझ में? एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर? अब देखो, अब सिंपल चीज है. अब थोड़ा सा इमेजिन करो. अब अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को तुम, हाँ नहीं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को, चार्ज से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. राइट. चार्ज का रिजल्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है. सिया तुम बताना, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक जाती है, कहां पे एंड होती है? इन्फिनिटी तक. इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में फैली हुई है? इन्फिनिटी रीजन में. तो ये ना एक खराब कैपेसिटर है. दिस इज अ वेरी बैड कैपेसिटी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूरे जगह फैली हुई है. इट्स अ बैड कैपेसिटर. ओके. इट्स अ बैड कैपेसिटर बिकॉज इट्स वेरी वेरी बैड. एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड कैपेसिटर क्योंकि तुम इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो. ठीक है. इसके कंपैरिजन में इफ यू टेक अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, ऐसे डाइपोल रखो, तो डाइपोल का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे कन्फाइन हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा कम जगह. अभी इन्फिनिटी में नहीं जाती. राइट. लेकिन कुछ अभी भी दूर दूर से जाती है. समझ में आया? तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया? थोड़ा सा कन्फाइन कर लिया. कन्फाइन वर्ड का मीनिंग सबको पता है ना. थोड़ा सा लोकलाइज कर लिया, एक जगह पे कर लिया है. तो दिस इज स्टिल अ बेटर कैपेसिटर. स्टिल अ
बेटर कैपेसिटर बट नॉट वेरी गुड, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड घूम घूम के बहुत दूर दूर से आती है, ठीक है, ये इन्फिनिटी से भी आती है, ओके फाइन। तो स्टिल अ बेटर कैपेसिटर देन व्हाट, देन दिस गाय, ओके समझ में आ गया एवरीवन, गॉट दिस, ठीक। अच्छा, अगर इस डाइपोल को मैं पास कर दूंगा, इस मतलब ये चार्जेस को पास कर दूंगा, डिस्टेंस कम कर दूंगा, तो ये और बेटर कैपेसिटर बन जाएगा, समझ में आया, क्योंकि अब और इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास हो गई। ये समझ में आ गया सबको कि नहीं? ठीक है। अगर तुम एक ऐसा सिस्टम बना सको, यू कैन मेक अ सिस्टम जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागी नहीं रही, बाहर फालतू स्पेस में नहीं जा रही, भाग रही, तो दैट इज अ वेरी गुड कैपेसिटर, ठीक है। अब तुमको दिखाता हूं मैं व्हाट इज अ आइडियल कैपेसिटर, एक अच्छा कैपेसिटर क्या होता है। तुम ऐसे पैरेलल प्लेट लो, दो पैरेलल प्लेट लो, एक पे पॉजिटिव चार्ज डालो और एक पे नेगेटिव चार्ज डालो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे स्टार्ट होगी, इस पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस पे प्लस क्यू मान लो तुमने रखा है, इस पे माइनस क्यू रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे खत्म हो जाएगी, ठीक, समझ में आया? ये बाहर कहीं नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरीवन गॉट इट, यस और नो? ठीक, दिस इज अ So वेरी why गुड। can't it go on the left side? Left side. Why can't it go on the left side of the charge? ओ ऐसा, ऐसे क्यों नहीं जा रही है? हाँ. ओ आई थिंक ये शायद मैंने डिस्कस किया है, पर मैं आज फिर से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सुनो क्या होता है, तुम लोग को ये याद है ना कि जब एक इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट होती है तो उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो अगर वो पॉजिटिव सिग्मा है तो उसके एंड द राइट साइड इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लाइक दिस। डू यू रिमेंबर दिस? है Yes, ना? sir. Yes, sir. सिमिलरली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज प्लेट, सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उसमें माइनस सिग्मा है, उसके राइट साइड में देयर इज, राइट साइड एवरीवेयर इट इज sigma by 2 epsilon naught like this, and on the left side it is sigma by 2 epsilon naught like this, fine, okay. Okay. Huh. Now if so, therefore what you can remember is in a positive charge plate, Okay, every, now got it. Yeah. Huh. याद आ गया ना, everywhere to the right of a positive charge plate the electric field is going like this, right, like this. Mm-hmm. Everywhere to the left of a positive charge plate it is going like this, okay. And everywhere to the right of a negative charge plate the electric field is coming to the plate like this, okay. And how much it is y sigma, and everywhere to the left of the negative charge plate the electric field is coming like this. So now if you think of three regions, region number 1, region number 2, region number 3, in region number 1 you see that a red line is to the left and a blue line is to the right, और दोनों का sigma by 2 है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E is 0 in this region. रीजन 3 में देखो ब्लू लेफ्ट में राइट और रेड राइट में, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझ में आया कि नहीं सबको? हेलो, याद रखना ये डेरिवेशन, ये आएगा एग्जाम में। और तीसरा, इन द मिडिल रीजन ब्लू वाला वेक्टर भी राइट में है, रेड वाला वेक्टर भी राइट में है, तो ई इधर कितनी है, इधर है ई इज इक्वल टू, और दोनों का एडिशन है बिकॉज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज जस्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाइन गाइस, गॉट इट और नॉट? Okay, so this is a very good capacitor, okay, good capacitor, ठीक। एक और तरह का कैपेसिटर सिस्टम है जिसमें देयर इज अ सिलिंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है। सिलिंड्रिकल में ऐसे होता है कि एक अंदर एक सिलेंडर होता है जिसका रेडियस सपोज r1, और बाहर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r2, और अंदर वाले को मान लो तुमने पॉजिटिव कर दिया, बाहर वाले को नेगेटिव कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी,
हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल गो लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी अंदर से बाहर की तरफ ऐसे जाएगी। तो सिलेंडर था, सिलेंडर मतलब थोड़ा सा लंबा भी होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो लाइक दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम इन विच यू हैव कन्फाइंड द चार्जेस, ओके फाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन कर दी, दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। एक और होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर अपने आप देख लो, ये पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, जरूरी नहीं कि अंदर वाला पॉजिटिव हो, मतलब उल्टा भी हो सकता है, अंदर वाला नेगेटिव बाहर वाला पॉजिटिव, ओके। स्फेरिकल कैपेसिटर अंदर ये ऐसे ऐसे, ये एक दो स्फीयर्स हैं, और नीचे वाला अंदर वाला प्लस क्यू, बाहर वाला माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है मस्त, ठीक है, ठीक है, ओके कूल एवरीवन। इसमें देखो थोड़ा सा ये होता है ना, इसमें ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें थोड़ा सा राइट साइड से बल्जिंग वल्जिंग होती है, थोड़ा सा ऐसे होती है। सो इट इज, अगर बेस्ट पूछोगे तो बेस्ट ये वाला है, स्फेरिकल बेस्ट है एकदम, उसमें बाहर कुछ भी बल्जिंग नहीं होगी, इसमें थोड़ी थोड़ी बल्जिंग ऐसे होगी, ठीक है। बल्जिंग होगी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जितना कन्फाइन करना चाह रहे हो वो कन्फाइन नहीं हो रही है, वो थोड़ी सी बाहर ऐसे निकल निकल के ऐसे जा रही है। तो इसलिए अगर इन तीनों में कंपेयर करना है तो इन तीनों में स्फेरिकल इज द बेस्ट कैपेसिटर, फाइन। बट तुम्हारे सिलेबस में ऐसे बल्जिंग को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, नहीं होती, ठीक है। हाउ कैन वी प्रिवेंट बल्जिंग? कि अपना जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका एरिया, जो एरिया है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये बहुत हाई है, एरिया इज हाई, हाई मतलब लार्ज वॉल्यूम, लार्ज एरिया, ओके, नॉट हाई हाई। एंड the d, okay, d मतलब the distance between the capacitor, the plates, d is very low, okay. So if you decrease the distance और a high करोगे तो you will see that एकदम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी मच कन्फाइंड, ओके, इट्स अ वेरी गुड कैपेसिटर। अगर ए छोटा करके डी बड़ा करोगे ना, ऐसा मतलब ऐसा दूर दूर प्लेट्स, छोटे छोटे दूर दूर प्लेट्स, दैट इज नॉट अ वेरी गुड कैपेसिटर, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागेगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि नहीं एवरीवन? ओके, सॉरी, ओके, नाउ सी, विल फाइंड कैपेसिटर निकालने के लिए क्या करना है, किसी भी चीज का कैपेसिटर निकालने के लिए दो काम करते हैं। अगर किसी चीज का कैपेसिटर निकालना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वर्ड है अभी, ठीक, कैपेसिटेंस निकालेंगे इस चैप्टर में, कई चीजों का सी बोलते हैं उसको। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है क्यू बाई वी, मतलब कूलम, कूलम डिवाइड बाई वोल्ट्स, और इसको हम बोलते हैं, इसकी यूनिट को बोलते हैं फैरेड, फैरेड, ओके, एफ, कैपिटल एफ, फैरेड, एफ ए आर ए डी, ठीक है, ओके। तो कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड है, पुट या गिव, टू फाइंड कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस सबसे पहले एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बाल्टी की कैपेसिटी एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है बाल्टी की, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द मटेरियल मेड ऑफ एंड हाउ इज द ऑब्जेक्ट शेप, ठीक है, फाइन। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, टू फाइंड कैपेसिटेंस, टू फाइंड सी, पहला स्टेप होता है गिव q of to find c of a body, of course, of an object or body, give q to the body, find v of body, 3 c is equal to q by v, very simple, 3 step process,
तुमको बॉडी को क्यू देना है चार्ज, जब क्यू दोगे तो उस बॉडी को पोटेंशियल आ जाएगा। पहले पोटेंशियल नहीं होगा, बाद में पोटेंशियल आ जाएगा। कितना पोटेंशियल आएगा, वी आएगा, वो निकालना है। वो निकाल के सी इज क्यू बाई वी कर देना है। फाइन फाइन एवरीवन। अब ना हम करते हैं, ठीक है। तो लिखो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम चीजों का निकालेंगे। पैरेलल प्लेट, अब से मैं पैरेलल प्लेट ऐसे लिखूंगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया तुमने, इस पे चार्ज है प्लस 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 क्यू, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड द डिस्टेंस इज डी, ठीक है। अब देखो, आप अपने को पता है व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा इज क्यू बाई ए। सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, ये पता है सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी पता है ना सबको, इतनी होती है, ठीक है। फाइन एवरीवन, ठीक है। अब ना पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो एक फार्मूला था पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। मतलब इस प्लेट का टू द लेफ्ट प्लेट का राइट प्लेट से कितना ज्यादा पोटेंशियल है, ओके। कितना पोटेंशियल है देखो, ये भी बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट, मेरी आवाज आ रही है ना, मैंने बता रखा है क्लासरूम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड गोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, बता रखा है। इसका मतलब अनन्या ये बताओ, विच प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, लेफ्ट और राइट? The higher potential will be in the left one. हाँ सही है, और लोअर है राइट में। Yeah. भी बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, ऐसे ऐसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो हायर इज लेफ्ट, लोअर इज राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, E इनटू द डिस्टेंस विद, देखो ये होता है ना, ये देखो ये फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ऐसे किया था ना, डेल वी बाई डेल आर। मतलब कि डेल्टा वी कितना होता है, E डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब डिस्टेंस, अभी कितना डिस्टेंस गए हो तुम, D डिस्टेंस गए हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डेल्टा वी या V कितना है, व्हाट इज योर पोटेंशियल, इट इज E इनटू द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है D, राइट। तो E कितना है, E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट B, ये तुम्हारा आ गया V, दिस इज V। तो कैपेसिटेंस देखो तुमने Q दिया था, और अभी तुम्हारा पोटेंशियल आ गया, तो व्हाट इज योर कैपेसिटेंस, इट इज Q बाय V, एंड Q वाज सिग्मा इनटू A, Q सिग्मा इनटू A, यहाँ से देखो दिख रहा है ना, Q सिग्मा इनटू डिवाइड बाय V कितना है, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये आंसर है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है। अब तुम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसका यूनिट है फैरेड, F, ठीक है। फैरेड को F बोलते हैं। अनन्या एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस क्या होगा, Will increase. और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, Will decrease. ठीक है, ओके, सॉरी। ओके, ये एवरीवन हैज गॉट दिस, कैपेसिटेंस इज दिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, तो सिलेंड्रिकल का मैं तुमको बता देता हूँ। सिलेंड्रिकल का जो, एक मिनट, हाँ, स्फेरिकल का सुन लो। स्फेरिकल में क्या होता है कि इस पे अंदर प्लस क्यू, बाहर माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा, E इज इक्वल टू बेसिकली के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा ना किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर तुमको डीवी निकालना होगा, डीवी डेल्टा वी, ओके, तो विच इज ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इंटीग्रेट फ्रॉम
अगर अंदर वाले का रेडियस ए है, बाहर वाले का बी है, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, तो तुम इसको करोगे ना तो आएगा के क्यू बेसिकली 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होगा, ठीक है, -1/r, फिर ए बी लगाओगे तो ये ऐसे कुछ आएगा 1/a माइनस 1/b, इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है, विच इज के क्यू 1/a माइनस 1/b, ये तुम्हारा डेल्टा वी आएगा, ठीक है। और व्हाट इज योर क्यू, क्यू इज क्यू, तो व्हाट इज योर सी, सी इज क्यू बाई वी, इट इज क्यू डिवाइड बाई के, क्यू 1/a माइनस 1/b, क्यू क्यू गया तो आता है, इसका आंसर आता है ए बी बाई बी माइनस ए, इस तरह से कुछ आएगा। और ये के नीचे है ना, के इज 1/4 ये आता है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये रिजल्ट जल्दी से याद रख लो बस, ठीक है, ए बी बाई बी माइनस ए 4πε0। अब इसमें ऐसा है कि इफ यू इंक्रीज द बी, तुम ऐसे सोचो, फिजिक्स वाइज सोचो, अगर तुम बी बढ़ाओगे क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, इस रिजल्ट को छोड़ो, ऐसे सोचो, अगर बी बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बी बढ़ा रहे हो तुम, बाहर का रेडियस बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ज्यादा रीजन में फैलेगी, तो कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, कैपेसिटेंस कम। यस, समझ में आ गया एवरीवन, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर का ये कैपेसिटी है, ठीक है। ठीक है, ओके, यस। So how would the field lines be if inside there's a negative and outside there's a positive charge? ये रेड लाइन अंदर से बाहर जा रही है ना? Yeah. So you'll just go the opposite way. हाँ, तुमको क्या डाउट हो रहा है, बाहर भाग जाएगी? So हाँ, मतलब बाहर भी भागनी चाहिए। डाउट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही, ऐसा डाउट आना चाहिए। तो फिर एक बात मुझे बताना कि अगर जब मैंने बोला तुमको डाउट, जब पॉजिटिव बाहर किया तो तुमको डाउट आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भाग क्यों नहीं भाग रही, राइट? तो जब नेगेटिव बाहर था तो ये डाउट क्यों नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से क्यों नहीं आ रही, क्योंकि नेगेटिव फील्ड पे आती है ना। Yeah. ये भी डाउट होना चाहिए था। वैसे दोनों को तुम इक्वली वो लो ना, मतलब एक को अपना फेवरेट मत बनाओ, दोनों चार्ज को, ठीक है। Yeah. एक्चुअली मैं कोई भी आंसर कर देता हूँ, सपोज इसके लिए आंसर कर देता हूँ तुम्हारे लिए पॉजिटिव। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर है, अगर यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ से प्लस क्यू जाना चाहता है हर जगह, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब यहाँ माइनस क्यू हो जाता है तो ये सारे कन्फाइन होकर इसमें ही आ जाते हैं। सॉरी, समझ में आया? नहीं आया? I नहीं don't आया। understand. चलो ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। तुमने यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सारी अंदर है, मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं होता कि थोड़ी सी बाहर भाग जाए, ऐसे क्यों नहीं? Because we just saw that वो cancel out होता है क्योंकि इस तरफ से भी आता है। वो कैंसिल आउट होती है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे फिर तो उसके हिसाब से तो यहाँ भी समझा सकता हूँ। ये प्लस क्यू है, Yeah. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फेंकेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा ना। Yeah. ये समझ में आ रहा है ना बात? Yeah. अच्छा, एक माइनस क्यू होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उसके कैसे होगी, ऐसी होगी। सर बट वो माइनस क्यू उसके अंदर है तो बिल्कुल बाहर से नहीं खींचेगा, राइट? अच्छा ठीक है, ओके, चलो तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। पहले बात समझ में आ गई कि ये दोनों, या अगर ये दोनों साथ में एक जगह होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होती, क्योंकि कैंसिल कर देते। या ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हैं, एक रेडियस है, तो तुम हम ना एक्चुअली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3 यूनिट का रेडियस है, ठीक है, और एक 4 यूनिट का रेडियस है, ठीक है। तो कौन सा अंदर रखना, तुम बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव? सर एनीथिंग इज फाइन, फाइन कीप बोलो पॉजिटिव जल्दी। इनसाइड। चलो पॉजिटिव नेगेटिव, +1 -1, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैं तुमको प्रूव कर रहा हूँ कैसे, देखो सपोज ये पॉइंट है 6,0, ठीक, तो समझ में आ गया?
Yeah. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, एक पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर या शेल से तुम ऐसे ट्रीट करते हो कि सारा पॉजिटिव +1 सेंटर पे रखा है, आउटसाइड पॉइंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी 1, सॉरी के, क्यू कितना है 1/6², ये होगी कि नहीं, समझ में आ रहा है Yeah. कि नहीं? अच्छा, ड्यू टू नेगेटिव प्ले, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव स्फीयर है इसकी वजह से ये -1 है, इसकी वजह से अगेन तुम यही बोलोगे ना, ये पॉइंट तो आउटसाइड है नेगेटिव क्यू के, तुम बोलोगे सारा नेगेटिव क्यू ऑरिजिन पे रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, कितनी होगी, के 1/6², Yeah. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैंसिल हो रही है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, मैंने भी आज तक किसी को एक्सप्लेन किया नहीं, किसी ने पूछा नहीं आज तक। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yeah. ठीक है, ओके, और ये रिजल्ट भी समझ में आ गया। ये रिजल्ट एक्चुअली ना इस फॉर्म में ज्यादा सही होता है, ये ab/b- ये फॉर्म इज, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, ये ऐसे याद रखता हूँ, ऐसे 4πε0 और नीचे 1/a - 1/b, ऐसे, दिस इज, आई फील इट इज बेटर वे टू रिमेंबर। ठीक है, इट्स योर चॉइस, ये याद रखो या ये रखो, ठीक है, फाइन। हेलो एवरीवन। Yes. अच्छा, इसके बाद एक और है, कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल जो होता है, ये तुम्हारा होमवर्क है टू डिराइव दिस, ओके, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का जो ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क टू डिराइव दिस, एंड तुमको दिख भी जाएगा क्यों है ये ऐसा। 2πε0 डूड के एल इज द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, ओके, तो ये एक कैपेसिटर है जिसका अनसाइड रेडियस ए, आउटसाइड रेडियस बी, इनसाइड, ये पैरामीटर्स लिख लेना, ठीक है, पैरामीटर्स है इनसाइड रेडियस ए, आउटसाइड रेडियस बी, एल इज द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, 2πε ln2, ln2 is 2.1, it is ln b/a, ठीक है। टू गिव यू एन हिंट वाई ऐसे क्यों आ रहा है, मैं तुमको बताता हूँ, मैथ्स में हमने किया है इंटीग्रल 1/x dx is ln x, ठीक है, ये हिंट है, तुम जब इंटीग्रेट करोगे तुमको समझ में आएगा क्यों आ रहा है लॉग, ठीक है, 2πε0 ln b/a, ठीक है, ये तुमको निकालना है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है कैसी होती है तुमको बता रखी है, ठीक है, ओके, एवरीवन हैज गॉट दिस? फाइन। अब एक चीज और देखना कि एक अभी मैं तक मैंने बताया था, ये वाला जो ये पहला सिस्टम था ना, पहला सिस्टम जिसको मैंने बहुत गंदा कैपेसिटर बोला था, ये वाला, ये वाली चीज जो गंदा कैपेसिटर बोला था ना, वेरी बैड कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी होती है 4πε0r, ठीक है, 4πε0r, एक सिंपल सा अगर स्फीयर है जिसपे चार्ज, एक ही चार्ज है क्यू, सब मतलब एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है ये, अगर एक आइसोलेटेड मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज वहां पे नहीं है, आइसोलेटेड पॉजिटिव स्फीयर का कैपेसिटर कितना होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उस पर प्लस, ऐसे प्लस 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 कितना प्लस क्यू रखा है, सी इज 4πε0r, ये होती है, ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो अभी जल्दी से काम करो, एमटीजी वो खोलो, फिंगर टिप्स खोलो, फिंगर टिप्स, ठीक है, आपके पास है ना फिंगर टिप्स, उसमें फिंगर टिप्स में क्वेश्चन नंबर 49 से लेके करते जाओ, क्वेश्चन नंबर 56, 56 नहीं 54 तक, ठीक है, 54। I'll be back in 5 minutes, तब तक जल्दी से इसको करके और फिर आंसर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 49 to 54, ठीक है।
Okay. Satvik. Sir, Yes, can you sir. send the fingertips book? I don't have it. Wow. एक लिंक है क्लासरूम में. अनन्या तुम्हारे पास नहीं है ना? अनन्या, अनन्या, यू कैन टेक माय ब्लड अवे है क्या? Yeah, sir. चलो 49. सात्विक तुम बताओ आंसर क्या है? Sir, it will be both V and R T is equal because to 6 by V. Hmm. Because yeah, 1 second. So the formula C equals Q by V, and here the charge Q proportional to pucha, so that means it's C into V. So it's proportional yes, to V, and in a metallic sphere, the formula for C is 4 pi epsilon naught R. So it's also proportional to R. very good, very good. Okay, keep going like this. Sia, next. So 50th one we just derived for a spherical capacitor, so it'll be A4 pi epsilon naught R1 R2 by R1 minus R2. Sir, अगर it कभी doesn't let doubt हो, me. Sir, it doesn't let me access it or whatever. It says 1 second. Unable It to says that access. you can't. Yeah. थोड़ी देर बाद रिफ्रेश मारते रहना, वो आ जाएगा. Okay, fine. नहीं आए तो किसी बच्चे से पूछ लेना, वो तुमको डॉक्यूमेंट भेज देगा. ठीक है? Okay. हाँ, नेक्स्ट 51. 51 किसको आता है? मुझे नहीं लगता. किसको आता है बता दो हाथ खड़ा करके 51 का आंसर. 51 एक्चुअली तुमने सिलेंडर का तुमको होमवर्क दिया है ना, वो तुम देख लेना, उसके बाद 51 आएगा. वैसे किसी को आता है तो बोल दो 51. नहीं, ठीक है. 52. 52 हम कल ही डिस्कस, वो भी सिलेंड्रिकल का है, बाद में ही करेंगे जब तक जब होमवर्क करके ले आओगे. ठीक है? 53. आदि. I didn't do it yet one. I was doing the 52nd one. अच्छा, 52nd वन कैसे करना है बताओ. Sir, we can use the formula they gave, 2 pi epsilon naught L by ln B by A. अच्छा, L की वैल्यू कितनी है? 1.6 by 1.5, so it will be around L 6.45. की वैल्यू, L जो ऊपर न्यूमरेटर Oh, में L. L. 20 into 10 to the power minus 2. ठीक है, 0.2. ठीक है, ठीक है. ln और L नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है? ln into ln B by A. ln of B B. कितना है? B is 1.6. ठीक है, ठीक है. क्योंकि रेशियो है तो तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मीटर में. ठीक है? Okay. नीचे रेशियो है इसलिए कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत है. ठीक है. अच्छा, ओके. भावना, व्हाट अबाउट 53rd? So it'll be area of the plate will be increased. ठीक है. व्हाट अबाउट डिस्टेंस ऑफ द प्लेट? वो क्या होना चाहिए? That has to decrease. यस, यस. ओके. 54. तुलिका.
Oh yeah, sir, I got B because you add the electric fields. ठीक है, वेरी गुड. अब सुनो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, काफी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है. जब तुम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उठाते हो, ठीक है, तो उसमें चार्ज कितना होता है? कितना होता है? चार्ज कितना है उस पर? So is it Anya, how much charge is there on a parallel plate capacitor? The potential into epsilon naught. Oh, A my by question is, my question is exactly like, you take a bucket, how much water is in there? So your answer should be, sir, how much, however you want to put, however you have put. So whatever charge I have put, okay, Q, let it be Q, okay. अभी Q डाल दिया अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, क्या बता रहा था मैं? हाँ, okay. So how do we how do we actually do this? हम ऐसे ऐसे Q लाके ऐसे डालते नहीं, उस पे डाल सकते हैं, ठीक है, बट एक इजियर मेथड है, वो ये है. इजियर मेथड ये है कि हम कैपेसिटर को ना एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है. हाउ डू वी चार्ज ए कैपेसिटर? देखो, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ओके. देखो, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके. तो कैपेसिटर लिया आपने, अनचार्ज है भी, उस पर जीरो चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है कहीं किसी भी प्लेट पे. मैं उसको कनेक्ट किया एक बैटरी से. तो ध्यान रखना, कैपेसिटर की जो डायग्राम है वो है दो पैरेलल लाइंस, इक्वल लाइंस है, ठीक है, वो कैपेसिटर है. और अगर एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी है तो वो बैटरी है, ठीक है, फाइन. नीचे वाली बैटरी है. सपोज द बैटरी इज ऑफ वॉट एवर, सपोज 10 वोल्ट, ओके. तुम जैसे 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करते हो, क्या होता है सुनो. सपोज ये स्विच है, ठीक है, सॉरी, ये दिस इज अ स्विच, ओके. और स्विच तुम क्लोज कर देते हो, दिस इज स्विच, ओके. स्विच तुमने क्लोज कर दिया तो क्या होगा? स्विच को ऐसे क्लोज कर दिया, चार्ज उठ के जाने लगता है. एक्चुअली मैकेनिज्म, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म? ये होता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते, राइट. Positive charges do not move in a circuit. So what happens is, प्लेट नंबर 1, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल में जो कनेक्टेड है, इससे उठ के इलेक्ट्रॉन्स उठ के जाने लगते हैं. थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गोइंग, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन द नेगेटिव दिस साइड, ओके. तो क्या होता है, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन उठ के, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से इधर आ गए, तो लेफ्ट प्लेट पे क्या हो गया? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ चार्ज ऑफ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? एंड राइट प्लेट पे क्या होगा? देयर एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? Everyone has understood this, yes or no? So can you repeat? I'll 1 second, okay. Can you hear me? Yes, sir. See, in a circuit, in a solid circuit, and circuit made of solid devices, okay, metal, conductors, batteries, positive charges do not move, okay. Only negative charges, which is electrons, move. Actually, what is happening when you connect a capacitor to a battery, the plate of the capacitor which is connected to the positive terminal of the battery will be positively charged, and the plate which is connected to the negative terminal of the battery will be negatively charged, okay. The next thing is, what actually happens is that electrons come from the left side, this plate, from this plate, from this plate, electrons will come out. They go like this, they travel, okay, they travel like this, they travel, and accumulate on here, okay. If 10 electrons make this journey, 10 electrons go from left plate via the battery to the right plate, there will be a deficiency of 10 electrons on the left plate.
and then and consequently there will be 10 electrons extra on the right plate. We will say that the left plate has a charge of plus 10e and the right has a plate charge of plus minus 10e. If you want to find the exact charges, the charge on one electron is 1.6 into 10 power minus 19. So the left plate will get a charge of plus 1.6 into 10 power minus 18 coulomb, and a negative plate will get a charge of minus 1.6 into 10 power minus 18 coulomb. Do you understand this? Yes, sir. Yes. Okay. Now till when these charges अब 10 जाएंगे, फिर और 10 जाएंगे, फिर और 10 जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे, कब तक जाते रहेंगे? जब तक जाते रहेंगे, कब तक जाते रहते हैं? जब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता. जब इक्वल हो जाएगा तब रुक जाएंगे. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके. तो कैसे होगा? सपोज इनिशियली चार्ज 0 है, फाइनली क्या चार्ज होगा? फाइनली चार्ज होगा Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, और ये बैटरी पोटेंशियल V, ये Q will satisfy CV. अंडरस्टूड? वेयर V कौन सा V है? ये वाला V. अंडरस्टूड? कहां तक चार्ज, कब तक चार्ज स्टोर होता है? C into V अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, वेयर V इज द अप्लाइड पोटेंशियल. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? और यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक दैट QCV था ना, कैपेसिटर पे चार्ज Q इज इक्वल टू C into V ऑफ द V बिटवीन द प्लेट्स. तो V क्या है? Q by C. ठीक है, तो कितना वो पोटेंशियल बराबर, कितना पोटेंशियल होना चाहिए? Q such that Q by C is equal to this V. ओके, दिस V. तो अगर 5 वोल्ट की, तो ऐसे क्वेश्चन करो. क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड. ठीक है, उसको मैंने जोड़ दिया किस बैटरी के साथ? एक 5 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया. 5 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया. अभी तो मुझे बताओ कितना है प्लस Q, कितना Q कितना होगा? जल्दी से बताओ, कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे? 5 वोल्ट बैटरी है. 5 microvolts. Sorry, 5 microcoulomb. वेरी गुड, 5 माइक्रोकूलम. समझ में आ गया सबको एवरीवन? माइक्रोफैराड इनटू वोल्ट इज कूलम, सो माइक्रोकूलम. ओके, ठीक है. अगर तुमने बैटरी को 5 से 6 वोल्ट कर दिया तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा? So it'll be 6 microcoulomb. Very good, 6 microcoulomb. Have you understood this everyone? Yes. ठीक है. Okay, so what decides the charge in the capacitor? Two things decide charge in the capacitor. किस बैटरी कनेक्ट किया है और what is the C of the capacitor. Okay, more C means more charge will be stored, of course, right? कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा. तो जो वोल्टेज है वो लेवल के जैसा है. लेवल, कितना लेवल तक पानी भर रहे हो. C जो है वो अमाउंट, वो कैपेसिटी पे है. कैपेसिटी है, C इज कैपेसिटी, और Q अमाउंट ऑफ वाटर. अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज इनटू द लेवल ऑफ स्टोरेज. अंडरस्टूड? फाइन. अच्छा, अब एक और चीज सुनो. कैपेसिटर में डायरेक्टली जो है चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट हवा में जंप नहीं कर सकता. ओके, 10 इलेक्ट्रॉन को अगर उठ के जाना है तो बैटरी के थ्रू ही जा सकते हैं, हवा में चार्ज नहीं कूदते. ठीक है, कृष्ण नहीं है. ठीक, ओके. देयरफॉर ये बात समझ में आ गई है कि इफ चार्जेस अगर ट्रांसफर होने हैं, अगर कैपेसिटर का चार्ज चेंज होना है तो बैटरी से होके जाना पड़ेगा चार्जेस को. समझ में आया कि नहीं एवरीवन? यस और नो? ठीक है, ओके. दूसरी चीज ये सुनो कि मान लो एक कैपेसिटर है, वो अभी उस पे अभी +10 इधर है, -10 इधर है. ठीक है, तुमने क्या किया? तुमने उसको तार से जोड़ दिया. क्या होगा? तो वायर से जोड़ दिया, क्या होगा? So but potential and both become equal. बिल्कुल सही, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है ना. Yeah. लेफ्ट वाले का पोटेंशियल ज्यादा है. कितना ज्यादा है? E into D, ऐसे ज्यादा था ना. तो दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? What is the implication of this? Both the charges become equal. Become Equal. बिल्कुल सही, दोनों चार्जेस इक्वल हो जाने चाहिए. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही थी, इसलिए तो पोटेंशियल था, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी ना लेफ्ट टू राइट.
अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी ना इधर से उधर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही कहीं से कहीं, लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस बराबर हैं। ठीक है, दोनों चार्ज बराबर कैसे हो सकते हैं? एक का लेफ्ट का +10 था, इसका -10 था, क्या होगा कि दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे? ये लेफ्ट में +10 का मतलब क्या था? एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 कूलम उठ के गया था ना नेगेटिव प्लेट पे, यही था ना? तो क्या होने वाला है अभी? The flow of electrons from +10 to -10. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हुआ था पहले +10 से -10। अरे देख, पहले 0 चार्ज था, बैटरी लगाई, बैटरी के थ्रू 10 कूलम उठ के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे चला गया। लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट बोलूंगा मैं, लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट चला गया, तो हमने बोल दिया लेफ्ट प्लेट पे चार्ज है +10 और राइट प्लेट पे चार्ज है -10। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए कि दोनों पे चार्ज 0 कैसे मतलब सॉरी बराबर कैसे हो सकता है? क्या हो कि दोनों पे चार्ज बराबर हो जाए? देखो, अगर कुछ भी सपोज एक और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में चला गया, तो लेफ्ट में +10 राइट में -10, राइट? सॉरी +11 -11, सॉरी +11 -11, राइट? अगर एक और कूलम उठ के लेफ्ट से राइट में चला गया, तो लेफ्ट पे +11 राइट पे -11, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना, अभी भी रहेगी ना लेफ्ट टू राइट, पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहनी चाहिए। तो कितना चार्ज फाइनली है दोनों पे? So no charge. क्या बोला तुमने? No charge. यस, देयर इज नो चार्ज, मतलब फाइनली इस पे अगर जोड़ दिया तुमने तो नो चार्ज, दोनों पे 0 0 हुआ। क्या है, जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गए थे वापस उठ के वो इधर पे आ गए। ठीक है, नो इस पे भी 0 इस पे भी 0, मतलब अरे यार ऐसे इतना भी सोच रहे हो, ये +q ये -q, तुम इसको जोड़ दोगे वायर से, क्या होने वाला है? वायर से जोड़ो क्या होगा? There won't be any flow between. फिर वो फ्लो तो होगा, फाइनल चार्ज 0 हो जाएगा ना, फ्लो होगा, चार्ज विल फ्लो -q से +q इधर जाएगा, राइट? Yeah. Q net will become 0. q net will become 0, q net तो अभी भी 0 है। हाँ, q net तो अभी भी 0 है, मतलब इंडिविजुअल भी चार्ज 0 हो जाएगा। अभी जो सिस्टम बना है आदि +q -q, इसका q net 0 है ना? Yeah. बाद में भी q net 0 है, दैट इज ट्रू, बट इंडिविजुअली भी चार्ज 0 हो जाएगा। चार्ज एनिहिलेट बोलते हैं इसको, एनिहिलेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दोनों चार्ज एक दूसरे खत्म कर देंगे। ओके, कूल एवरीवन? I didn't get why they like itself become 0. क्या फिर से बोलना? I I didn't get what? Each of the charge will become 0. ओके, देखो बेटा, ये तुमको ये डाइपोल वाला समझ में नहीं आएगा? डाइपोल के अगर एक ऐसे दो स्फीयर है, एक +q है एक -q है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या होने वाला है? ये समझ में आया कि नहीं कि दोनों 0 हो जाएंगे वायर से? ये नहीं आया समझ में? So 1 minute. सोचो, जल्दी पूछो, जो भी पूछना है पूछो, जो भी डाउट है तुमको नहीं समझ में आया। नहीं, I got it. यू गॉट इट, अच्छा। तो प्लेट कैपेसिटर भी समझ में आ गया, दैट इट विल बिकम 0 चार्ज, Yeah. 0। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ सी, अब एक क्वेश्चन दो कैसे आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं, कैपेसिटर है, उसको V से चार्ज किया, V से चार्ज किया तो उस पर चार्ज हो गया, उसका कैपेसिटर का कैपेसिटी C था, तो +CV माइनस मतलब CV चार्ज आ गया कैपेसिटर पे। ठीक है,
अभी तुमने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी हटा दिया, ठीक। अभी चार्ज, जो भी चार्ज है, ये प्लस सीवी माइनस सीवी, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, राइट, ये कहीं नहीं जा सकता। तो अगर अब ये क्वेश्चन पूछता है कि मैंने ना कैपेसिटर के डी को, जो डी है ना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसको कम कर दिया, डी डिग्री, डी को कम किया, इसको पास लाए, ऐसे पास लाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, बढ़ेगा कम होगा क्या होगा। Capacitance will increase. वेरी गुड, क्यू, So they're inversely proportional. क्या, Oh, So Q will increase. Wait. Sorry, if D is decreasing, Q will increase. देखो ये जो फॉर्मूले है ना, सी इज क्यू इज सी वी, सी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा दिमाग लगा के लगाना है, ठीक है, ऐसे नहीं। देख बेटा, क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू, क्यू इज चार्ज इन द प्लेट कैपेसिटर, राइट, है ना। उसने भी बोला कि पोटेंशियल सी बढ़ रहा है, जैसे उसने बोला अनन्या ने, इसलिए तुमने देख के बोल दिया क्यू भी बढ़ रहा है, यही बोला तुमने ना, हेलो, राइट। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि बेटा क्यू क्या होता है, क्यू तो चार्ज है ना, ये तो कहीं से आएगा ना चार्ज, someone will give charge or something like, right, is anyone giving any charge, no, चार्ज ना कोई दे रहा है ना ले रहा है, देयर इज नो वायर कनेक्टेड, उठ के तो जंप करके तो जा नहीं सकते चार्जेस, राइट, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, ओके, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। और v क्या होगा, अब नाउ यू कैन यूज c is increasing, q is constant, so what is happening to v, will decrease. decrease, understood everyone, ठीक है, ओके, ठीक है। तो जब हम प्लेट हटा, मतलब ये इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो क्यू चेंज नहीं हो सकता, हमने तार हटा दिए, चार्जेस वहीं से मूव हो रहे थे तार के थ्रू, राइट, तो क्यू चेंज नहीं हो सकता, अंदर, सो क्यू कांस्टेंट है अगर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो, इफ बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है, समझ में आ गया, ओके एवरीवन, ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कैपेसिटर है, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, वी से कनेक्ट करके रखा है, तो इसका चार्ज है प्लस सी वी माइनस सी वी, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, स्टिल कनेक्टेड है, और मैं क्या कर रहा हूँ, डी कम कर रहा हूँ, अगेन मैं इसके कैपेसिटर प्लेट को छोटा कम कर रहा हूँ, मतलब पास में लेके जा रहा हूँ। अब बताओ कैपेसिटी क्या होगी, सी, Will again increase. सी तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना, उसको फर्क थोड़ा पड़ता है कैपेसिटर कनेक्टेड है कि नहीं है, तो कैपेसिटर की ए और डी पे डिपेंड है, तो सी इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है सबको एवरीवन, व्हाट हैपेंस टू वी, V will decrease. नहीं, वी होता है, वी है कैपेसिटर का, वी कौन डिसाइड कर रहा है, प्लेट, बैटरी डिसाइड कर रही है, कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, बैटरी Oh, डिसाइड कर V रही है, will be constant. हाँ, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल सेम है ना, सेम बैटरी, ठीक है, समझ में आ गया सबको, बैटरी सेम है तो वी भी सेम है, व्हाट हैपेंस टू क्यू, Q will increase. क्यू विल इंक्रीज, यस, ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बिकॉज क्यू इज सी वी एंड वी सेम एंड सी इज इंक्रीजिंग। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आएगा कभी आगे चल के लाइफ में, एकदम से डायरेक्टली, ओके, ओके, अभी एक काम करो, 55 और 56 अपने आप कर लो, अपने आप करके तुम 57 भी करो, 55 56 57 अपने आप करो, करके नीचे आंसर भी चेक कर लेना और मुझे बता देना, अगर तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है तो वेरी गुड, चुपचाप बैठ जाना, अगर नहीं मैच कर रहा है तो पूछ लेना, सर ये क्यों नहीं मैच कर रहा मेरा आंसर, ओके, थोड़ा सा भी नहीं मैच करे तो पूछ लेना।
So in the 56th question, when they say the system is isolated, Anya Agarwal, yes, what were you asking? so in the 56th question, when they say the thing was isolated, does that mean that they removed the battery or? Isolated मतलब हटा दिया उसको, सब पूरा सर्किट से हटा दिया, मतलब that means it is disconnected from the battery. Alright, so thank you. Anya, do you have a phone? Yes, sir. Yes or no? And thumbs up. Yes, sir. Is there Zoom on the phone? Not the app. No. There is no app, Zoom app on the phone. Oh, can you install? Sir, my answers are matching. Your answers are matching. Thumbs up, yes, matching. Yes, sir. Thumbs down, no, not matching. Thumbs up, yes, matching. Thumbs out, thumbs down, not matching. So I couldn't hear you. I said thumbs up for yes matching, thumbs down for not matching. Okay, okay. Okay. Sorry. Not the app. Sir. हाँ उसमें ना कनेक्ट करो, उसमें जूम कनेक्ट करो ये वाला, और disconnect your audio from the laptop and join audio through the phone. Okay. Sir, if the distance decreases, shouldn't the potential increase? Because KQ किस by R. क्वेश्चन में बोल रहे हो?
बैटरी से कनेक्टेड है? one second. Sir, what do I do now? हाँ बोलो क्या पूछ रही है, बोल रहे अन्य थोड़ी देर बात करो पहले। I want to- I've disconnected the audio from laptop and I've joined through my phone. yeah, always do it from now on. In every Zoom class you can do it like this. Okay, Okay. thank you. Yes, Adi, your doubt. Yeah, so it says that the 56th one, it's isolated, it's charged and then isolated. So effect of increasing plate separation. The potential should decrease, right? Because we're increasing the. If you increase D, the C is decrease. C will decrease capacitance. Okay. Yeah, yeah. The capacitance decreases and ये isolated है, तो isolated तो the charge constant है. Yeah. From Q is equal to CV, if charge is constant, left side is constant, और तुम capacitor C को बढ़ा रहे हो, increasing the plate separation, तो D C कम कर रहे हो, तो V बढ़ेगा. Yes, so potential will increase. Okay, I thought like because we're increasing the distance and we're increasing the distance and B is KQ by R, so then like Yeah, V is KQ by R कहाँ वो तो इस point charge को KQ by R है. Oh yeah. Correct. Okay. Sorry. Sir, I had it out in a previous question. 55. No, the 53rd one, the 53rd options, one. it's also given dielectric constant. So does that get affected with capacitance? जल्दी कौन सा दे रखा है क्या? तुम 53rd बोल रहे हो? 52 बोल रहे हो? 53rd. 3. In a parallel place capacitor, the capacity increases if हाँ dielectric constant से होता है dielectric constant से होता है, लेकिन increases नहीं होता है, कम बढ़ाओगे तो बढ़ता है. कौन सा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बढ़ता है. मैं अभी नेक्स्ट क्लास में तुमको बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 45 से 48 वो पढ़ाना है अभी. ओके, उसके बारे में पढ़ाना है. ओके, I hope everyone has done 55, 56, 57 and match their answers. Riya Datta, why are you traveling somewhere? What, I don't know what's happening. Your video is not on, your audio is not on. Sir, the network's just been really like patchy. That's why. Are you not at home? Sir, I am, but there's been internet connections issues like throughout the apartment for a bit. Okay. Okay. Must be have high. Okay. I mean that this is fine. Okay. एक काम करना है, थोड़ा सा होमवर्क लिखो, ठीक है? हॉट्स में जाना है, HOTS, ठीक है? ये जब 100 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हॉट शुरू होता है, ठीक है? तो हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, इतना करना. फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5.
Sorry. Okay. That's it about the lecture. If you have doubts in your homework or anywhere, please stay back and ask. So can I send you a